কে ডাকছেন আপনি, বিজেপির এমএলএ মন্ত্রীকে ডাকছেন, টিএমসির এমপি কে ডাকছেন। আমরা তো স্পোর্টস ক্লাব, আমাদের যারাই ভালোবাসবে আমরা এখানে পলিটিক্স ঢুকতে দেব না। আমরা পলিটিক্স করি না, আমরা পলিটিক্স ঢুকতে দেব না। আর আমাদের এখানে যে ক্লাবে আমাদের যদি কিছু ভালো করে আমরা সবার কাছে ভিক্ষা চাইবো। পুরো ফ্যামিলি শুটিং ক্লাবের ওয়ান অফ দি ফাউন্ডিং মেম্বার্স। ওনার যে কাকা এখন নাই অনিমেষ দা, he was also one of the founding members and colleague of আমাদের যে 62 বছর থেকে মেম্বার আছে অশোক চ্যাটার্জি। এরা সব মানে আগেকার দিনে যারা সব শিকারও করতো, যখন শিকার অ্যালাউড ছিল, আর শুটিংও করতো, হোল ফ্যামিলি মানে ডেডিকেটেড। তারপরে ছবি তোলা হয়ে গেছে, দাঁড়ান, ছবি তুলে হয়ে গেছে, ছবি তোলা হলে শুনুন দাদা, এমন মারবে। আরে যান না এখানে। সাংসদ, আমি আবার বারবার একটা কথা বলেছি, আজকেও একটা কথা বলছি। সাংসদকে যে আছেন আমাদের আসানসোলের যে সাংসদ মাননীয় শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, ওনাকে কোনো রাজনৈতিক দলের তকমা লাগিয়ে দেওয়া এটা ঠিক হবে না। উনি ওনার যে ব্যক্তিত্ব, ওনার যে চরিত্র, উনি যে লেভেলের মানুষ, আসানসোলের আমাদের গর্ব, উনি আমাদের এখানকার সাংসদ। আগে বিগত সরকার ওনাকে কাজে লাগাতে পারেন। উনি এখানে পৌঁছালে বিভিন্ন এখানের লোকাল নেতা মন্ত্রীদের একটু অস্বস্তি হতো। আমি বলছি না আজকের এই দিনে এটা বলার প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু উনিকে এমপি ছিলেন, ওনাকে এখানের কাজের মধ্যে কোনো কিছুর মধ্যে ইনভলভ হতে দেওয়া হতো না, যেটা খারাপ হয়েছে, নেগেটিভ হয়েছে। আমরা চাই উনি এমপি যতদিন রয়েছেন উনি আসবেন। আমি আজকে বলেছি, আমার মন্ত্রী ছিলেন, যে আপনি আসুন, আসানসোলে ডেভেলপমেন্ট করুন, আমরাও করব, একসঙ্গে আমরা ডেভেলপমেন্ট করবো। আজকে অন ক্যামেরা আমি বলছি। এবং দেখুন, কিছু জায়গা, আসানসোল রাইফেল ক্লাব যেন কিছু সংগঠন, কিছু প্রতিষ্ঠানকে না রাজনীতির বাইরে রাখতে হয়। আইডিওলজি নিজের জায়গায়, কিন্তু কিছু ক্লাব কোনো জায়গায় আইডিওলজি ছেড়ে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা উচিত। আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আজকে এসেছি, নিজের আইডিওলজি নিজের জায়গায় আছে। এখানে এসেছি আমরা একটা স্পোর্টস, সারা বাংলা থেকে ছেলেরা আসছে খেলাধুলা করতে, আমরা সবাই আছি এখানে। এই সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমরাই দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গে, এবং আগামী দিনে এই পরিবেশই বজায় থাকবে, যেখানে বিরোধী দলের এমপি আর শাসক দলের এমএলএ মন্ত্রীরা একসঙ্গে বসে डेवलपमेंट কথা চিন্তা করেं। बड़ा अच्छा है यहाँ का राइफल क्लब जो है, बहुत नाम कर रहा है। यहाँ के बच्चे पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ आसनसोल कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, सर्वधर्म समभाव उसके लिए जाना जाता है, कोल के लिए जाना जाता है, सेल और भेल के लिए जाना जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब आसनसोल अब इस कोल के और सेल और भेल के बाद सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर, सर्वधर्म समभाव का शहर, अब इस राइफल क्लब के लिए भी जाना जाता है और जाना जाएगा। क्या कि यहाँ इतना बढ़िया हो रहा है। ये 58th शूटिंग चैम्पियनशिप हो रहा है वेस्ट बंगाल का इस राइफल क्लब में। इसको जितना सहयोग दिया जाए मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय होगा। लोगों को आना चाहिए, सरकार को भी और समाज को भी इसका सहयोग देना चाहिए। ये युवा पीढ़ी का स्पोर्ट्स है, यंगर जनरेशन का स्पोर्ट्स है। यंगर जनरेशन हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ख़ासकर राइफल शूटिंग में तो बहुत ही नाम किया और बहुत ही काम किया। तो इन लोगों के लिए मैंने इनको कहा है, ढाल साहब को, जो इसके संस्थापक भी हैं, मुख्य इसके स्तंभ भी हैं, कहा कि मेरे से जो कुछ भी होगा, हमने पहले भी 50 मीटर्स वाले मामले में काफ़ी सहयोग दिया है, हमने देने की कोशिश की है। अभी यहाँ पे हॉस्टल बनाने की बात की इन्होंने,
जो बाहर से बहुत लोग आते हैं उनको रहने में कष्ट होता है, चाहे जगह जगह और कहीं रहना पड़ता है। तो एक हॉस्टल के लिए भी हमने यहाँ कमिट किया है। अभी हमारे साथ है, और साथ ही साथ मैं अभी देख रहा था जहाँ पे हमारा बात हो रही थी, हॉल, सो कॉल्ड हॉल जो है, जहाँ पे हर साल हम लोग आते हैं, कार्यक्रम होता है, इसको भी जल्द से जल्द लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, गर्मी का ख्याल रखते हुए इसको भी एसी कैसे किया जाए और जल्द से जल्द कैसे किया जाए, एसी की सुविधा दी जाए, ये इसको भी हम अभी सोच रहे हैं। और हमने कहा है कि हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम, बहुत अच्छा हुआ। ढाल साहब, यहाँ पे कलेक्टर साहब भी आए हुए थे, और यहाँ के एमएलए साहब जो हैं, जो नए निर्वाचित जो एमएलए हैं, बहुत बढ़िया हैं वो। क्या नाम है उनका, कृष्णेंदु बाबू, वो भी आए। यहाँ के मंत्री जी जो हैं बहुत बढ़िया, अजय पोद्दार जी, डॉक्टर अजय पोद्दार, वो इंटेलेक्चुअल पार एक्सीलेंस हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत विद्वान हैं और सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुके हैं। ऐसे मंत्री जी हमारे अजय पोद्दार जी ने बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने भी सहयोग देने का भरपूर उसका कहा, वायदा किया और प्रयास करेंगे उन्होंने कहा है। तो ये अच्छा रहा। इसी कार्यक्रम के लिए दरअसल मैं आया था यहाँ पे मुख्यतः इसी कार्यक्रम के लिए आया था। आज आपने